वह्मि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Yes. Pranam Swamiji, and greetings for Happy Diwali. Let the new year leads us further to our chosen path of God realization and spiritual sadhana. Thank you. Thank you. आज मैं स्वामी विरजानंद जी की बुक परमार्थ प्रसंग के नंबर 214 to 242 की समरी करूंगा। इसमें उन्होंने बद्ध जीव और मुमुक्षु के बारे में बताया है, कर्मयोग और कर्मयोगी के बारे में बताया है, प्राणायाम और सब सिद्धि के बारे में है, 8 सिद्धि के बारे में है, भक्त और भक्ति योग के बारे में है और कुछ उपासना के बारे में बताया है। तो पहले बद्ध जीव के बारे में बताते हुए कहते हैं that it's like a green coconut which is firmly attached to inner wall and can't be separated. Similarly, as long as there is self-identification with body or feeling happy or miserable due to happiness or pain of body, or so long as he remains bound by Maya and attached to worldly life, one suffers ceaselessly from threefold miseries, that is Adhyatmik, Adhibhautik or Adhidaivik. Baddha Jiv are like bonded slaves who suffer generation after generations. It's like silkworm spinning cocoon around it and dying in it. It's like fish trapped but enjoying in that fisher net. These are all bound jivas, Baddha jivas. While mumukshu are those when one is aroused from their delusion and realize their hopelessness, suffering of being bound hand and foot by the terrible chain of Maya, then they strive heart and soul to get free of them by any means whatever. These mumukshus are desirous of attaining mukti or freedom from birth and death. They try to cling to God by all means and in all conditions, in happiness as well as in sorrows. The jiva becomes free only when, by God's grace, the realization comes that self is separate from body, it is separate from the senses, and it is separate from internal organs. It can be achieved by right practice of 4 yogas, that is Raj Yog, Gnan Yog, Bhakti Yog और कर्म योग। अब कर्म योग और कर्मयोगी के बारे में बताते कहते हैं that work we all do, but we do not practice karma yoga as we become attached to work and do it for our selfish gains and happiness. To practice real karma yoga, we need to do any karma selflessly, without any attachment, without any expectations or rewards, without any feeling that I am the doer of work. Then he remains unaffected, neither elated or depressed in praise or blame, or by gain or loss, or in victory or defeat, or during pain or pleasures, remains Sthita Prajna. His whole life becomes an act of yagna or sacrificial worship, in which the process of offering, the fire, the doer of sacrifice, the work and the goal all becomes Brahman.
by offering all fruits of our actions, good or bad, to Him and renouncing the egoistic feeling that I am the doer. He is real कर्म योगी. अब प्राणायाम के बारे में बताते हुए कहते हैं that aim of pranayam is to control the pran, which manifests itself in breathing. This can be made to flow rhythmically, by which restlessness of mind subsides and it becomes tranquil. With this one-pointedness, mind can acquire infinite powers, and if practiced rightfully, one can attain Nirvikalp Samadhi or Savikalp Samadhi. But there is a danger that one may get diverted to attain 8 siddhis or superhuman faculties or those tantric powers, which are terrible temptations and tremendous obstacles in the way of achieving samadhi. Hence, exclusive practice of this Raj Yoga is extremely difficult and not meant for average person. One should be very cautious and conscious about practicing pranayam. अब भक्त और भक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं that bhakta who has pure love for God and nothing else, he retains the attitude of I am his or tasya aham, while gnani have an attitude of soham, that is I am he, the Brahman absolute. Who is real bhakta? It is he who has pure, desireless, unconditional love for God, who is made for God, whose whole heart and soul is ever fixed on Him. Whatever he does for God is next to nothing, but God Himself is really serving him. It's like worshipping Mother Ganga with Ganga's water. That is, offering him the things which are his. Then God bears the burden of such devotees and takes all care of such real bhakta. That Yogashem Vahamyaham. It's only because of bhakta's pure devotion and love, which is desireless, it is above sensuous, heavenly and everlasting, that God submit himself to such bhakta. Here love, the God of love, that is beloved, and the lover, all becomes merged into one without any distinction. What remains is bliss absolute. अब आखिर में उपासना के बारे में बताते कहते हैं कि it is act of approaching God through worship, prayers and service. Literally meaning is be seated in his proximity. We need to keep ourselves away from worthless thoughts, worthless actions, and keep away from impermanent worldly objects and temptations. Dispassion, non-attachment to worldly objects, and love for all beings. These are the three very fundamental root principles of every religion. But on other side, we need to devote ourselves to remembrance and contemplation of God through meditation, worship, and repetition of His holy name, Japa,
and also to good to others and serving humanity. We also need to remain always alert from 6 ripus, that is Kam, Krodh, Lobh, Moh, Mad, or Matsar, and always discriminate between Shrey and Prey, that is right and wrong, और नित्य and अनित्य विवेक. आखिर में स्वामी जी हमें बिग सोलेस आश्वासन देते हैं कि even if one falls down again and again, one must get up every time with new vigor to fight with all our might and courage. God himself helps those who are sincerely eager to lead a higher life. He gives them strength and inspiration. He makes their path smooth by removing all sorts of obstructions, dangers, and difficulties. And he becomes a real Sharanagat Vatsal. Astu. Pranam. Good. Good. वेरी गुड. अच्छा किया, ऐसे गुड किया. Very और good. एक्चुअली ये जो किताब हमने ली है परमार्थ प्रसंग, तो ये क्या है कि कोटेशंस का एक सॉर्ट ऑफ ए कलेक्शन है, एक पूरा कंटिन्यूअस आर्टिकल नहीं है. और इसमें जैसे आपने कहा कि एंड में कुछ नहीं है, वो कंटिन्यू करेगा. दैट इज एक्चुअली, और बहुत इम्पोर्टेंट बातें, प्रैक्टिकल है, सारा का सारा प्रैक्टिकल है. थ्योरी बीच बीच में आती है. और इस किताब को जितना अधिक हो सके आप लोग कुछ पढ़ सकें पर्सनली तो अच्छा रहे. ठीक है जी जी महाराज. प्रणाम महाराज जी, प्रणाम. ठीक है. आज फोन चला गया. अब सबसे पहले तो दिलीप भाई जरा बात करो, तो जो आपके क्या क्वेश्चंस है. दिलीप शाह. हाँ जी महाराज जी, प्रणाम जी. महाराज जी, क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले ये समरी में से एक सवाल दिमाग में आया है जो आपकी इजाजत से मैं पूछना चाहता हूँ. वो तो क्वेश्चन ही हो गया, और क्या, बोलिए. हाँ जी, ये कर्म विदाउट अटैचमेंट एंड डिजायर, that is what Swamiji says and this article says. Now my question is, then our karma of Zoom meeting, because we never would like to abstain from the meeting. हाँ, तो ये अटैचमेंट होगा या क्या होगा? क्या कि आज मुझे 6 बजे जाना था, मैंने कहा 10 बजे जाऊंगा, मैं मीटिंग अटेंड करके मेरे सवाल पूछ के जाऊंगा. अटैचमेंट तो हाँ, अब ये अटैचमेंट है. अच्छा, डिजायर भी है. मतलब ये है कि ये छोड़ना नहीं है मेरे को, इसका लड्डू खाना है. हाँ, तो ये भगवान का दर्शन करना है, भगवान की प्राप्ति करना है, ये भी तो एक डिजायर हो गई ना. हाँ, इन डिजायर्स को डिजायर नहीं बोलते. अच्छा. और आध्यात्मिक डिजायर को डिजायर नहीं बोलते. अच्छा, और अटैचमेंट के लिए क्या कहेंगे? अटैचमेंट भी नहीं, उसमें अटैचमेंट होना चाहिए. अच्छा. हाँ, राइट. वो तो होना ही चाहिए. संसार से अनासक्ति, भगवान से आसक्ति, साधना में आसक्ति, ये अटैचमेंट होना ही चाहिए. बस ये मेरा एक दिमाग में सवाल आया था. ठीक है. और ये ऐसी इच्छा होनी चाहिए, ये वासना होनी चाहिए, भगवान का दर्शन हो, मेरे को स्वास्थ्य अच्छा लगे, ध्यान जब अच्छी होवे, ये तो होना चाहिए. बराबर जी महाराज. ठीक है जी. मेरा पहला सवाल है पैराग्राफ नंबर 215. हाँ, उसमें महाराज जी, टू डू कर्म विदाउट एक्सपेक्टेशन, how a common man can do it. If no name, fame, then there will be no desire to do satkar. In the present world, the charity of millions of rupees and dollars are pouring because of name and fame. Are these people will not be blessed by God and not get moksha for their good karma? Are they not sent by God for doing good karma on this earth? नहीं, वो जैसे है वैसे ही रहेंगे.
अगले जन्म में या तो सेठ बन जाएंगे या गरीब बन जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, वो उनकी इच्छा होती है, बड़ी वासनाओं के कारण वो देते हैं। इतना करोड़ रुपया दिया है, लेकिन इसलिए हमको पुण्य बहुत ज्यादा मिलेगा। ये सब हाँ, वासनाएं सब बुरी होती है, कुछ नहीं होता इससे, अच्छा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। ऐसी जी, बहुत सी कहानियां हैं। और हाँ, ऐसी भी कहानियां हैं कि भिखारीन है बेचारा, कुछ कुछ 5-5 10-10 रुपया कमाती है रोज का। जी, और जो निष्काम भाव से जब लोग जब रिलीफ वर्क होता है हाँ, भूकंप इत्यादि होता है, तो बेचारी कोई मांगने आता है तो जो भी उसके पैसा होता है वो दे देता है। तो जी, ऐसे लोग जो हैं वो स्वर्ग में जगह मिलती है। करोड़ों से बड़ा उसका ध्यान ध्यान हो ध्यान हो जो वो हाँ, त्याग जो होता है, 5 रुपए का ध्यान जो त्याग है, वो करोड़ों से ज्यादा का दान होता है। जी महाराज जी। राइट, सेकंड क्वेश्चन है मेरा, पैराग्राफ नंबर 217, हम्म। पेज है 168 पर। इवन वर्किंग ही डज नॉट वर्क, एंड इवन विदाउट वर्किंग ही वर्क्स। तो महाराज जी इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये आइडियोलॉजी जो ये। देखो ऐसा है कि जो मन उसका एकदम शांत रहता है, हाँ, बाहर से कुछ काम नहीं कर रहा है, और अंदर से वो भगवान का निरंतर चिंतन कर रहा है, इसको बोलते हैं अकर्म में कर्म। हाँ, और जो दूसरा व्यक्ति बाहर बाहर कर्म करता है, सेवा करता है, लेकिन मन उसका शांत रहता है, उसमें वासना नहीं रहती, वो हुआ कर्म में अकर्म। समझे, अकर्म में अकर्म ये हुआ। और कोई दूसरा व्यक्ति है, वो कर्म कर शांत बैठा हुआ है, लेकिन चंचल है मन, हम्म, बिल्कुल उल्टा हो गया। नहीं, हाँ महाराज जी ये तो हिंदी ट्रांसलेशन हो गया, पर एक्चुअली ये हमारे मोक्ष के लिए इसके क्या, इस प्रकार से कैसे हमने चलना चाहिए पाथ पे, दैट इज किससे? व्हाट वी वांट टू नो। क्या ये तो क्या क्या? आपने ये हिंदी कर दिया इसका ट्रांसलेशन। हम्म। हाँ, पर ये हमको किस प्रकार से चलना चाहिए नहीं, जैसे हमारे हम जीवन, कर्म जो हमारे। करेंगे, वो कर्म ही अगर हम निष्काम भाव से करेंगे, हाँ, कर्म ये सोचेंगे कि प्रभु करा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, तो यह अकर्म हो जाएगा। तो ये पहले में आ जाएगा, इवन वर्किंग इट डज नॉट वर्क, हाँ, एंड यस। इवन विदाउट वर्किंग इट वर्क्स, तो पहले में हम आ जाएंगे, इवन हाँ, वर्किंग इट डज नॉट वर्क, राइट। यस। हाँ। जी महाराज जी। महाराज जी पैराग्राफ 218, महाराज जी प्राणायाम एंड 8 सिद्धीज आर प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, हाँ? प्राणायाम। एंड 8 सिद्धीज। नहीं नहीं, सिद्धि प्राणायाम से सिद्धि हो जाती है, वो तो हाँ, बाधा बन जाती है। नहीं तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ। पैराग्राफ 218 के हम्म। आखिरी लाइन है, द हम्म। 8 सिद्धीज और सुपर ह्यूमन फैकल्टीज और ऑकल्ट पावर्स आर एक्वायर्ड। ये प्राणायाम से ये हाँ हाँ, प्राप्त हो वो जाता यदि आप प्राणायाम वगैरह ज्यादा करेंगे, इसको करेंगे, तो ऑकल्ट पावर आ जाएंगे, मिल है जी। सकते हैं। ये हाँ, बाधाएं हैं, ये मार्ग में बाधाएं हैं। अच्छा, रास्ता लंबा है, जा रहे हो, रास्ते में आपको खजाना मिल गया, हाँ, बस वहां फंस गए, तुम्हारे आगे तो जाना है ना। जी, तो ये सिद्धियां जो हैं, ये हम्म, ऑकल्ट पावर आते हैं, लेकिन ये जी, बाधाएं हैं। यहाँ नहीं लिखा है बाधाएं, लेकिन बाधाएं। अच्छा। तो हमें प्राणायाम में ज्यादा अंदर नहीं घुसना चाहिए, नहीं। राइट। 219 219 paragraph, Maharaj ji, if a sadhak attains the 8 or any of them siddhis, can are not chances of misuse of them? If yes, then how to stop them? Though अभी तो reply, लेना। though reply is given in paragraph number 222, but हाँ। please explain, it is very difficult to find such guru in whose presence the practice of 8 siddhis be done, as it is said in this paragraph. हाँ, ऐसा है कि अच्छा गुरु होगा, Hmm. तो तभी वो सिद्धि भी मिलेगी।
और अच्छा गुरु होगा तो वो बता भी देगा कि ये मत करो। स्वामी विवेक और कहीं पे एक मैंने दृष्टांत छोड़ा है कि साधना में एक खूब ध्यान हो रहा था, ठाकुर के शिष्य के बारे में है। जी उनको थोड़ा सा सिद्धि जैसी आने लग गई हाँ कि मैं दूसरों के मन की बात जान लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कुछ दिनों तक साधना बंद कर दो, मत करो। जी 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 मैंने साधना ही बंद करवा दी। उन्होंने कहा ध्यान जब मत करो, बैठ जाओ, अलग अच्छा करो। तो क्या होगा, उसको साधना की सिद्धि मिलने का जो चांस था वो चला गया, हाँ वो ओके मार्ग निकल गया। उसके बाद में फिर उन्होंने 10-15 दिन बाद का अब ध्यान फिर चालू करो। हाँ हाँ तो ऐसे बराबर गुरु होने चाहिए जो सिद्धि आवे वो भी बता सके और सिद्धि हाँ का को कैसे काटना वो भी बता सके। बराबर जी महाराज जी हम्म। Nice. Now paragraph number 224, page number 173. We are all right as we are. If we have to enter upon the road to freedom which is unknown and uncertain, renouncing all that we have, we would rather forego freedom. Maharaji, this is very common thinking. How to overcome? It is said, बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं. Unless we see some glory, we cannot run blind. क्या We है, are, क्या कहना है? हाँ महाराज जी ये लिखा हुआ है. We are very all right as we are. If we have to enter upon the road to freedom, which is unknown and uncertain, and renouncing all that we have, we would rather forego freedom. Now my question here is, this is very common thinking. How to overcome it? पिताने वो श्लोक It is said that बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं. जब तक हमको अच्छा चमत्कार, अच्छा, आप चाहते हो चमत्कार नहीं? अरे हाँ भाई मैं देखो, दूसरी बात भी देखो, तुम्हारा चमत्कार हमारे जीवन में तो नहीं, हाँ दूसरे के जीवन में हुआ। स्वामी विवेकानंद के जीवन में हुआ, श्री रामकृष्ण के हाँ जीवन में हुआ, जी श्री जी रामकृष्ण के शिष्यों के जीवन में हुआ चमत्कार। वो ऐसे हाँ ऐसे हो गए, इतना ध्यान होता था, ये करता था। तो हम उन्हीं को देख कर तो बने हैं। हमने, हमारे जीवन में तो चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उनको लेकर चलने लग गए, और चलने लग गए तो थोड़ा थोड़ा होने लगा हमको भी। तो अटक बढ़ गया, चलो उस समय चले रहे, अच्छा अच्छा लगने लगा, मजा आने लगा, ध्यान शांत, शरीर मन शांत होने लगा, एग्जाम में मार्क्स ज्यादा आने लग गए। बस हमने कहा लगो चले रहे तो हाँ हाँ ये छोटे मोटे चमत्कार हो गए। जी. यानी हम एक बार इस लाइन एक में, बार शुरू करो ना, शुरू करो तो जी चमत्कार यानी क्या, मन अच्छा रहता है, हाँ मन जी शांत जी रहता है, आनंद आता है। हाँ तो ये ये हो तो गया, ये चमत्कार भी यदि आ जाते हैं तो मन लगे रहते हैं, नहीं तो क्यों। अरे आपको, मेरे को पता नहीं आता है कि आप जो है, आप तो इतने बड़े वकील हो और तुम ये क्यों लगे हुए हो इसके अंदर चक्कर में? कुछ चमत्कार हुआ है क्या? महाराज जी चमत्कार तो वास्तव में हुआ कि मन ज्यादा लगने लग गया इधर तब उधर से फिर हट तब संसार फिर से. तब फिर अब संसार के जो जूते पड़ते ना वो भी मालूम नहीं पड़ता, कोई मजा नहीं है, जाने तब दो. पहले पता है, संसार के जूते पड़ने से इस तरफ आए ना। बराबर ये, हाँ तो ये दूसरा चमत्कार हुआ दूसरा आपको. भी है, चमत्कार न भी होवे, लेकिन अगर संसार के जूते पड़े तो लोग भगवान की ओर आते ओके अच्छा अच्छा हाँ जी महाराज जी. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ नंबर 227. Bhakti हैं। class and Gyan class, out of the two which is easier? 227 में दिया है, दो क्लास बताए, भक्ति और ज्ञान क्लास. क्या है, क्या दोनों में से, क्या भक्ति और ज्ञान में क्या है? हाँ इसमें से कौन सा इजी? द फर्स्ट नेम बिलोंग्स टू द भक्ति क्लास एंड द सेकंड टू द टाइप ऑफ द ज्ञान. Both become wholly absorbed in spiritual moods according to their respective attitudes. But the devotee retains the attitude of I am his, and in the Gyan merges his ego in him in the thought of I am he. I myself am the unconditioned infinite existence, consciousness and bliss, the हाँ supreme self, the Brahman absolute.
तो हाँ, मेरा तो सवाल ये था हाँ, कि ज्ञान और भक्ति क्लास, ये 2 क्लास यहाँ पे डिस्कस की गई है। तो इसके अंदर से भक्ति क्लास में यदि हम जाते हैं तो बात जरा इजी मालूम पड़ता है। हाँ, तो आओ ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अच्छा ही पर अच्छा। भक्ति क्लास भी अल्टीमेटली ये हमको ज्ञान क्लास में ही ले जाएगी। ले जाएगा अल्टीमेटली। ये पहले अभी जो है मैं और भगवान अलग हैं। हाँ हाँ, जी। भगवान मेरे को प्यारे लगते हैं, धीरे 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 आगे चल के जाके मैं और भगवान एक हैं, बाद में हो जाए, अ- अच्छा। अंत में ज्ञानी हो जाएगा। अच्छा, भक्ति के अंदर भी हमको ज्ञान आखिर में पहुंचना ही है, ज्ञान में हाँ, 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 भक्ति इजी है, लेकिन जी अल्टीमेटली वो ज्ञान में पहुंच जाएगा, पहुंचा उसकी देगा। चिंता मत करो। हाँ। जी पहुंचा देगा। जी महाराज जी, पैराग्राफ 228, हम्म, what I understand from this paragraph is formless Brahman and limitless sky, both are the same। ये मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ हिंदी में महाराज जी, आपकी इजाजत से। निराकार ब्रह्म भौतिक आकाश के समान विराट नहीं है, वे है अखंड चैतन्य स्वरूप। यह चैतन्य ही सर्वव्यापी है, सब वस्तुओं में ओतप्रोत है। उन्हीं की सत्ता से, उन्हीं के अस्तित्व से समस्त वस्तुओं का अस्तित्व है। उन्हीं की चित प्रभा से, उन्हीं के ज्ञानालोक से जागतिक ज्ञान है। उन्हीं के आनंद से संसार यति किंचत आनंद प्रवाह है। इस तरह से वे विराट है। ध्यान की सुविधा के लिए आकाश उनकी मात्र दी गई है। महाराज जी, ये थ्रू आउट जब हम ये पढ़ रहे हैं आज 2-3 साल से, हर जगह एग्जाम्पल जो दिया जाता है वो आकाश का दिया जाता है। हाँ, हाँ, और यहाँ इन्होंने बताया कि आकाश एक उपमा दी गई, पर आकाश इज नॉट द फाइनल। नहीं नहीं, आकाश आकाश उपमा ही तो है। आकाश का दृष्टांत दिया जाता है, यही बोल रहे हैं कि अरे हाँ भाई, आकाश, ब्रह्म को आकाश मत समझ लेना, तो आकाश का दृष्टांत दिया जाता है। हाँ, जैसे बोला कि ये संसार जो है जी वो वो रस्सी में सांप जैसा है। हाँ जी जी तो ये सांप को आप संसार मत समझ लेना, वो तो दृष्टांत दिया जा रहा है। उसी जी प्रकार आकाश का दृष्टांत दे रहा है। ब्रह्म कैसा है? तो ब्रह्म क्या मोटर जैसा है, या पानी जैसा है, या बोलते हैं घड़ा है और चारों ओर ब्रह्म ब्रह्म जो है वो घड़े में, तो घड़े में पानी है, ये तो जीव हो गया, और सारा जो तालाब है वो अब्रह्म हो गया। ऐसा हाँ दृष्टांत दे देते हैं। तुम इसका मतलब ये मत समझना कि जो तालाब है वो ब्रह्म है, वो तो दृष्टांत है। बराबर। उसी प्रकार ये आकाश जो है ये वो दृष्टांत है, ये समझ लो। नहीं, परंतु आकाश के लिए जिस प्रकार आकाश सभी जगह है, हाँ उसी प्रकार ब्रह्म भी सभी जगह है। लेकिन ब्रह्म तो चैतन्य है, आकाश तो चैतन्य नहीं है, आकाश तो जड़ वस्तु है। लेकिन ब्रह्म जो है चैतन्य है। चैतन्य चैतन्य। यानी क्या? मेरे मन में विचार आ रहा है, तुम्हारे विचार में आ रहा है, तो ये कहाँ से आ रहे हैं? इसके पीछे कोई सत्ता तो है। मैं और जी तुम चैतन्य है, टेबल तो चैतन्य नहीं है। जी इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। यस। तो ब्रह्म जो है वो कॉन्शियसनेस है। हाँ, पर कहते जड़। आकाश और ब्रह्म को एक मत समझ लेना। अच्छा, पर कहते जड़ भी तो चैतन्य के अंदर ही आता है ना। गीता के अंदर लिखा हुआ है कि कृष्ण कहता है कि मैं टेबल में भी हूँ, मैं पेड़ हाँ, में भी हाँ, हूँ। सभी में हाँ है, सभी जी, में तो है। हाँ हाँ, तो ब्रह्म भगवान जो है वो केवल आकाश में नहीं है, टेबल में भी है, मेरे कमरे में है। तो कमरे में जो जगह, खाली जगह है, उसमें ब्रह्म है, और कुर्सी में नहीं है, ऐसा नहीं है। जी। अच्छा, तो ये जो कहते हैं हाँ, कि मनुष्य का फॉर्मेशन जो हुआ है, वहाँ 5 वस्तुओं से वो 5 वस्तु जो आती है वो भी तो आकाश के द्वारा ही आती है। नहीं आकाश। नहीं, वो सब 5 वस्तुएं भी ब्रह्म की है, ब्रह्म ही है उसमें भी। अच्छा, तो हाँ, शिशिर ठाकुर ने जब स्वामी विवेकानंद को जब स्पर्श कर दिया, हाँ तो उनको दर्शन क्या हुआ? तो टेबल भी ब्रह्म है, और कार भी ब्रह्म है, जी मोटर भी ब्रह्म है, गाड़ी आ रही तो वो हिल नहीं रहे हैं कि अरे ये घोड़ा जो है ये भी ब्रह्म है और मैं भी तो ब्रह्म हूँ।
वो हिल नहीं रहे हैं कि मैं क्यों हलूं, वो तो घोड़ा नहीं है, ब्रह्म है। ओ, अच्छा, तो रोटी खा रहे हैं तो रोटी भी ब्रह्म है। ओके, जी जी, यानी समझ लो, तुम्हारी टेबल वगैरह जो भी है ना, उन सब चीज को तुम मोम की बना दो, हाँ तो टेबल का रूप तो होगा, जी, लेकिन मोम की बनी हुई है। हाँ, और यदि तुम्हारी किताब भी जो है, किताब का रूप होगा लेकिन मोम की बनी हुई है। हो गया, जी जी, पूरा कमरा का कमरा सब मोम का है। हाँ अचानक तुमने देखा अपनी तरफ, तो तुम भी मोम के बने हुए हो। हाँ, इसी प्रकार का है। जी, राइट, जी Swamiji, महाराज, can I interrupt here? जी, यस। Swamiji, I have a very interesting example for. No, no, but they don't disturb like that example. It is not Okay. possible. Oh, sorry, sorry. अच्छा, महाराज जी, now we come to paragraph number 229. The enlarged meaning of the recital of 24th slok of chapter 4 of Gita is ultimately there is one and only one rule of Brahman, which is in me. This everyone has to think alike. If so, how we think Zoom meeting? क्या हुआ, क्या हुआ? महाराज जी, ये गीता का श्लोक है जो हाँ। दिया है इन्होंने, 24th श्लोक ऑफ चैप्टर 4 ऑफ गीता. हाँ, क्या है? This is ultimately there is one and only one rule of Brahman, which is in me. कृष्ण ये कहते हैं कि there is एक सत्ता और वो मैं हूँ. हाँ 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 हाँ, तो जब वो सत्ता है तो आज जो हम ये जो जूम मीटिंग कर रहे हैं, ये भी क्या कृष्ण के उसके अंदर है क्या? हाँ हाँ, अभी तो बात किया कि सब मोम का बना हुआ है। ओके जी, जिस प्रकार मोम का सब कुछ बना हुआ है वैसा ही है। ओके, तो और ये जो भी बात उसी कर रहे हो ना, वो भी मोम की बनी हुई है। बहुत समझे? गुड गुड रहस्य की बात होती है, बड़ी बड़ी गुड सब रहस्य. चैतन्य है, सब चैतन्य है। हाँ। जी, राइट. अच्छा, नाउ पैराग्राफ 230. Kali is made up of all the 50 letters of the alphabet. Every letter is a name of hers. महाराज जी, ये समझा दे. अरे, जब मैंने मतलब ये है कि हाँ. काली बोला, तारा बोला, दुर्गा बोला, ये हाँ बहुत सारे नाम कर दिए ना। हाँ हाँ हाँ, जी, अच्छा, वो ऐसे नाम करते करते उनके बारे में क्यों नहीं, अरे जितनी भी है क ख ग घ जो है, ये भी काली के ही नाम हो गए। हाँ बिल्कुल. अच्छा, यानी जो भी मैं बोलता हूँ सब काली का नाम ही हो गया। जी, हम्म, यानी जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, जो बातचीत करते हैं, वो सब काली ही है, भगवान का ही नाम है। कितनी सुंदर बात। यानी नहीं, जैसे आप ये बोले और मैं जो बोला, ये भगवान के नाम है। नहीं महाराज जी, जरा एक बार फिर से बोलते हैं. अरे ये तो देखिए, अच्छा हाँ देखो, काली नाम है, हाँ, दुर्गा नाम है, जी, सीता नाम है, हाँ माया नाम है, हाँ हाँ, जानकी नाम है, हाँ हाँ, हाँ, सरस्वती नाम है, जी जी, रुक्मणी नाम है, भगवान माँ के इतना नाम हो गए ना, बहुत सारे, हाँ हाँ, बहुत सारे नाम हो गए, 100 बहुत नाम. सारे नाम हो गए। तो जो 58 54 जो वर्ड है ना, वो सब के सब भगवान के नाम हो गए। हाँ, वो हर एक अल्फाबेट में कहीं ना कहीं हाँ, सब नाम अल्फाबेट आ नाम गया. भगवान के नाम हो गए, हाँ, काली के नाम ये हो। अच्छा, राइट. तो मतलब ये है कि तुम जो बोल रहे हो वो सब हाँ, भगवान के नाम ही बोल रहे हैं, हम सब बोल रहे हैं, तुम सुन रहे हो, सब भगवान के नाम ही है। ओके. यानी कितनी हम भगवान कितना को कितना अच्छी बात है, कितनी सुंदर बहुत बात है तो। बहुत बहुत सुंदर. दैट इज वेरी राइट. जी महाराज, बहुत बढ़िया. जी, पैराग्राफ 233. महाराज, फिर मंत्र क्यों दिया जाता, मंत्र? अरे इतने इतने सारे नाम है, उसमें से किसको हेलो, चुनोगे, ये बताओ। जी, अगर तुम इस बात में प्रतिष्ठित हो जाओ कि सब ओ, काली के नाम है, तो ओ, फिर कोई मंत्र मंत्र पहले की 5 जरूरत मिनट. नहीं है। अच्छा अच्छा. अभी नहीं है इसलिए कर दिया मंत्र। हाँ। यस महाराज जी, अब पैराग्राफ 233. The more we keep ourselves away from worthless thoughts and actions and from impermanent worldly objects and devote ourselves to the remembrance and contemplation of God, to meditation, worship, repetition of
repetition of his holy name, and to activities like doing good to others and humanity. The closer we approach God, the more we are transfigured into his likeness, and the more are our hearts filled with bliss. There is no other way that this to conquer the world and to be saved from the misery and mental discontent. Maharaj, this sentence leads to Karma Yoga, and we go away from Jnana Yoga. What I think so is correct. यानी ये पैराग्राफ पूरा हमें ये बताता है कि तुम्हें कर्म करना, कर्म कर्म कर्म, और तो फिर हम ज्ञान योग से अभी बाहर निकल गए क्या इस पैराग्राफ में? नहीं, ये जो कर्म है ना, वो दोनों कर्म करते करते कर्म जो योग है वो ज्ञान योग एक ही हो जाएगा। जिसका ये भाव है कि सब भगवान का ही है, उसके लिए कर्म योग और ज्ञान योग एक हो जाता है, ये बता रहे हैं। अच्छा। And my last question. God bears the burden of such devotee and provides for him whose whole heart and the soul is ever fixed on him. Here my question is, God gives everything what is due for him and not only to Bhakt. Am I correct? यानी सबको भगवान देता ही है, बांटता ही है। हाँ ठीक है, तो ठीक तो है बराबर। और वो उसका ड्यू है, वो उसको मिलता है, उसका कर्म का उसको मिलेगा। हाँ अच्छा, ठीक तो है जी। राइट महाराज, बस महाराज। चलो चलो, अब आ जाओ इतु इतु इतु। प्रणाम महाराज। हाँ, मेरा पहला प्रश्न है फ्रॉम द टेक्स्ट, इन दैट केस यू विल बी लिबरेटेड फ्रॉम ऑल बॉन्डेज, you will have performed all your duty and achieved the aim of your life by being blessed with the attainment of supreme bliss, which is beyond happiness and beyond happiness and misery. My question is, offering the karma phal of the work is about the work performed, then but what about the sanchit and prarabdha karma phal? Is it possible to wipe out even those by this above karma? वेरी गुड क्वेश्चन। यानी अब निष्काम कर्म यदि करते हैं अनासक्त होकर, तो हमारे नए कर्म नहीं बनते, लेकिन जो संचित कर्म और पड़े हुए हैं, व्हाट हैपेंस ऑफ दिस, ऐसा है। इसके दो आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत के अनुसार बिना ज्ञान के संचित और प्रारब्ध कर्म नहीं नष्ट होते। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म के कारण तो हमें फल ये जीवन मिला है, लेकिन संचित कर्म जो है बिना ज्ञान के नहीं होते। और तो ये ज्ञान मतलब भगवान को जानना, ऐसा केवल जानना, ये रियलाइज करना। वेदांत के अनुसार तो ये जानना कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर मन इत्यादि से विशुद्ध हूँ, मैं बिल्कुल भिन्न हूँ, तो मुझे कर्म तो लगेंगे ही नहीं। ये नॉलेज प्राप्त करना, दैट आई एम आत्मा, देह मन प्राण से भिन्न हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनह, मेरे को मन बुद्धि अहंकार चित्ता नहीं है, न देह है न मन है, ये कुछ नहीं है, मैं चित्त चिदानंद रूप शिव हूँ। ये जानना, इसको कहते हैं ज्ञान। इसके बिना मुक्ति नहीं होती। अगर एब्सोल्युटली पूर्ण रूप से अनसेल्फिश रूप से कर्म करोगे, तो प्रारब्ध कर्म जो है वो नष्ट हो जाएंगे। और कभी कभी क्या है, निष्काम कर्म अपने आप में मुक्तिदाता हो जाते हैं, बट रेयरली, जनरली प्रारब्ध कर्म के लिए आपको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। अच्छा, ज्ञान अग्नि में भस्म करना। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्धये, वस्तु सिद्धि विचारे न कोटि कर्म भी, ये विवेक शंकराचार्य का है। चलो जी,
मेरा सेकंड प्रश्न है फ्रॉम द टेक्स्ट, एंड इफ द माइंड becomes wholly absorbed in the contemplation of God with form in the lotus of the heart, one is blessed with the direct vision of the chosen ideal that is realizes God. So my question is, by doing this, being absorbed in even by being absorbed, is even the imagination considered as direct vision? Please clear No. this. ऐसा है कि इमेजिनेशन लीड्स टू डायरेक्ट विजन। Oh, सूर्यानंद जी से एक्चुअल विजन होता है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये इमेजिनेशन करते करते फाइनली एक्चुअल रियलाइजेशन होता है। इफ यू आर कंटिन्यूअसली डूइंग इट, यू गेट एक्चुअल रियलाइजेशन। अच्छा। सूर्यानंद जी एक चीज है दैट प्रैक्टिस करने से एक्चुअल रियलाइजेशन होता है। अच्छा अच्छा, मेरा थर्ड प्रश्न है फ्रॉम द टेक्स्ट, इन द इंस्ट्रक्शन, ओ नहीं, इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है। इन द इंस्ट्रक्शन नंबर 221, few things have been considered as very important. If few or any of those is lacking in us, even for some time, is it not worth continuing further? नहीं, ऐसा है कि तुम कंटिन्यू, जो भी जितनी भी साधना के जितने भी वैल्यूज दी गई हैं, सत्य बोलना, ये जो भी करना, जो भी है, वो सबके सब अनइम्पोर्टेंट नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ी सी है तो इनफ नहीं है। अच्छा है ना? अच्छा। पूरा ही करना पड़ेगा ना। विवेक, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान सब करना पड़ेगा। यम नियम आसन प्राणायाम करना पड़ेगा। वो पता विवेक चूड़ामणि में जो सब क्या करना है वो सब करना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास नहीं है, सब नहीं है तो भी बुरा नहीं है, कोई बात नहीं, जो भी हो उसको रखो वो हो, लेकिन रियलाइजेशन उससे नहीं होगा, लेकिन रखो उसको, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा, मेरा प्रश्न समाप्त हुआ। चलो भाई, देवाशीष साहा, देवाशीष। प्रणाम महाराज जी। क्वेश्चन है पेज 1, पॉइंट नंबर 214। The jiva free. The jiva free only when by grace of God comes self is separate from the body and the senses and other internal organs. So my तुम्हारे डिस्टर्बेंस हो रहा है वहाँ पे, क्या बात है? सतीश जी म्यूट कर लो। कहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है? म्यूट कीजिए। महाराज जी मैं रिपीट करूं? हाँ करो। The jiva becomes free only when by God's grace the realization comes that the self is separate from the body and the senses and the other internal organs. My question is, does it mean that we become free by God's grace alone and even without passing through the sadhana like sadhana chatushtay and that ये सब भी करना पड़ेगा God's grace? ये देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे भगवत कृपा की बात की गई है और विवेक चूड़ामणि में भी कई स्थानों पर कहते हैं भगवत कृपा होनी चाहिए, बिना नहीं उसके होता है। लेकिन भगवत कृपा उन्हीं पर होती है जिन्हें साधन चतुष्टय किया हो। अच्छा जी महाराज जी। हाँ, और दूसरी बात यह है कि अगर साधन चतुष्टय नहीं किया हो तो भगवत कृपा का उपयोग भी नहीं कर सकेंगे आप। अच्छा, यू आर ओनली एबल टू रिटर्न, भगवत कृपा हो रही है तो रिटर्न नहीं करते। भगवान की कृपा तो जो है वो हवा तो बह ही रही है, ठाकुर बोलते थे ना कि भगवत कृपा की वायु तो बह रही है। पाल तानोगे तब तो हवा लगेगी, तब तो नौका चल रही है ना, बुझले छे? तो अच्छे तो नौका पाल तानते होबे, ना हले भगवत कृपा हवा चल छे जो लाभ होबे ना। ये पाल तानना क्या है? साधन चतुष्टय है।
अच्छा जी महाराज हाँ, जी। ये बहुत अच्छी तरह करना पड़ेगा, तब भगवान की कृपा लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी, लाभ ही नहीं होगा। जी महाराज जी। दूसरी बात यह है, जिन पर भगवान कृपा होती है ना, उनको हाँ। इतनी तीव्र इच्छा होती है साधना की बस। ओ अच्छा जी महाराज जिसको जी। जो खूब इंटेंस तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है, वो हाँ चिंता ही नहीं करता है कि भगवान कृपा हो रही है कि नहीं नहीं। हाँ। लेकिन सच पूछा जाए, हम क्या बोलेंगे कि अरे इस पर भगवत की कृपा हुई है इसलिए उसको साधना अच्छे खूब कर। जी महाराज जी। तो डोंट बैठे मत रहो, यू हैव टू इंटेंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है। जी महाराज जी। इसलिए दो कारण होंगे, एक तो कि भगवत कृपा प्राप्त होगी, और दूसरी जो कृपा प्राप्त होगी उसका उपयोग कर सकोगे, यू विल बी एबल टू मेक यूज ऑफ इट, अदरवाइज नॉट। यानी ये इट इज अनफॉर्चुनेट दैट पीपल मिसअंडरस्टैंड भगवत कृपा। जी महाराज जी। हमें किचु करते হবে না, বসে থাকতে হবে, ভগবত কৃপায় হবে, এই হবে না, ऐसा कभी नहीं होता। महाराज जी। महाराज भगवत कृपा हुआ है ऐसे कैसे पता चलेगा कि हाउ और यू जो रियलाइज? व्यक्ति, मैंने कहा ना कि इसमें साधना कर रहा है, खूब जम के साधना कर रहा है, वैराग्य आ गया है, त्याग आ गया है, मन भगवान में लगाने का प्रयत्न कर रहा है, तब जी समझ महाराज लीजिए जी। कि भगवत कृपा हुई है। जी महाराज जी। जी महाराज समझ में आया महाराज जी, थैंक यू महाराज जी। महाराज जी सेकंड क्वेश्चन जो है वो तो अभी दिलीप भाई ने क्या है आपको कुर्ता गुलो तुझ हाँ, निवेदन। मैडम जी आप म्यूट कर लो। अच्छा सेकंड क्वेश्चन है महाराज जी। क्वेश्चन नंबर ए तो अभी अभी दिलीप भाई का फिर क्या हो गया है। है, उसको बी है, बी पार्ट पे जाता हूँ। इज इज इट ए सेल्फलेस वर्क? नहीं तो हो गया। अच्छा, कैन डूइंग जपम बी कॉल्ड एज सेल्फलेस वर्क? अगर देखो कोई ये जप देखो, जब जब जितनी साधना है, जब साधनाओं को तुम सेल्फलेस वर्क में क्यों लेते हो? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जप, ध्यान, पूजा। व्हाई डू यू कंसिडर देम एज सेल्फलेस वर्क? दे आर एंटायरली डिफरेंट क्वालिटी। मैंने डिस्कस किया अभी, हाँ हाँ। दोनों को सेपरेट करो भाई। अच्छा निष्काम कर, जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो भगवान के लिए, ऐसा नहीं। यदि जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये तो डायरेक्टली भगवान के लिए कर रहे हैं, इसको सेल्फलेस वर्क क्यों कहते जी महाराज जी, समझ में आया हैं? महाराज हाँ, जी। ये अटैचमेंट टू गॉड मतलब ये है बैठे हुए स्वाध्याय कर रहे हैं, तुम भी बोलोगे हम बातचीत कर रहे हैं, तो ब्रह्मशानंद जी जो है वो सेल्फलेस वर्क कर रहे हैं। अरे सेल्फलेस कर रहे हैं, ये तो स्वाध्याय हो गया है, हाँ हाँ। ये तो मैं स्वाध्याय है। हाँ, जी महाराज जी, समझ में आया अब महाराज जो जी। मैं राइटिंग में आर्टिकल लिख, भगवान के नाम लिखो, बैठ के नाम लिखो, थिंक, विचार करो, ऐसा नहीं। हाँ हाँ। हाँ। इसका मतलब भगवान के बारे में सोचो या भगवान के बारे में पढ़ो या भगवान का जप उसको करो ये अरे काहे लाते हो उसको, स्पेशल वर्क की बात में क्यों लाते हो उसको? भाई अच्छा यू रिड्यूसिंग इट। हाँ। जी महाराज जी, एक्चुअली समझ में ऐसा है कि अर्जुन तक भगवान तो कहते हैं कि एक क्षण भर भी आप बिना कर्म करे नहीं रह सकते। आया। तो वह डिवाइड करोगे, कितने वर्क को डिवाइड करोगे? सारा वर्क, सारा संसार में जो कुछ काम कर रहे हो वो तो सेल्फ, वो कर्म ही हुआ। न कर्म में क्षण में भी चित्त चेत, यानी एक क्षण भर भी तुम बिना कर्म के तो कर ही रह ही नहीं सकते। जी महाराज जी। तो सिविल के वर्क को डिवाइड में करने की बात क्यों करते हो? जी महाराज जी। नहीं, इसलिए यहाँ कर्म पर निष्काम है। अब मन का सेल्फलेस भाव है, निरंतर भगवान में मन को लगा रखोगे तो वो क्या ठीक हो गया। भगवान गीता में कहते हैं कि उसको सब कर्म को, यत् यत् कर्म कर्म करो में तत्त शंभो तवाराधनम। भगवान गीता ही है कि जो भी कर्म करता हूं मैं, वो प्रभु तुम्हारी आराधना है। अच्छा सुबह शाम यदि करो कर प्रभु, जो भी सारा दिन मैंने सब कर्म किया वो प्रभु तुम्हें समर्पित। जी महाराज जी। निरंतर भगवान का स्मरण करो। जी महाराज जी। तर इसमें क्यों एवरीथिंग गड़बड़ करते हो? क्यों भाई भाई यार, ब्रिंगिंग आउट निष्काम कर्म, यानी सेल्फलेस वर्क इत्यादि। मतलब महाराज जी एवरीथिंग इज डिवाइन इस एटीट्यूड से करे क्या? हाँ, एटीट्यूड करो उसमें, फिर हाँ नहीं, ये डोंट ब्रिंग दिस निष्काम कर्म बिजनेस, दैट इज माय अच्छा पॉइंट। जी महाराज जी, हाँ, क्योंकि हर कर्म का पीछे continuously remembrance of God, the matter ends there. जी जी महाराज जी। हाँ, जी महाराज जी, ठीक है, समझ में आया महाराज जी, थैंक यू। अभी नेक्स्ट अभी समझ में आया, फिर बस वही बात नहीं, वापस उठाओगे। थोड़ा समझ में बताया आता कि है, फिर वो सेम थिंग कम्स आउट अगेन, व्हाट इज दिस?
इधर सेल्फलेस वर्क बताया। तो ठीक है महाराज जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्लिस एंड हैप्पीनेस? हैप्पीनेस जो है संसारिक विषयों से सुख मिलता है, उसको हैप्पीनेस बोलते हैं। अब ब्लिस जो है वो भगवान का ध्यान जप करने से, परमात्मा चिंतन से जो ब्लिस सुख मिलता है, उसको ब्लिस बोलते हैं। जी महाराज जी। तो क्वालिटी इज डिफरेंट, बोथ क्वालिटीज इज डिफरेंट। जी महाराज जी, समझ में आया महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज 166-67 में, पॉइंट नंबर 216। It is said in the passage that all happiness that is permanent in this world is achieved by selfless and non-attached workers, those who do not feel that they are the doers of the work. My question is, do we have to develop the love of God first and then do karma yoga? Has anything in the passage there is no mention of love? Why are you bringing that? कर्म योगा तभी कर सकते हैं लोग अगर भगवान का the attitude of love, there is no question of love has arisen in the question in the passage. Why are you bringing that passage love? महाराज जी पैसेज में बताया गया कि the passage says that श्री कृष्ण, बुद्धा, जीसस क्राइस्ट, श्री चैतन्य, श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद are the ideal men and true karma yogis. तो यहाँ पे, तो यहाँ भी पैसेज में ये नहीं लिखा है कि ये लोगों ने भगवान भजन किया था या भगवान में मन को ध्यान लगाया था. It is not written in this passage. That's true. Then why are you bringing out love of God? They had the love of God. No. People. Is it mentioned in the passage or not? No. It is not mentioned in the passage. Then why are you bringing it? Okay. Next question may, what are the qualifications of a karma yogi for an ordinary person like us? As we said before, beginning karma, salute him, during karma, think of him, and after doing karma, offer the fruits to him. Is it enough? No, it is not enough. Remember, before and after is minimum. Surrendering everything to him is the thing we have to do. Yes, जी महाराज जी. जी महाराज जी. Okay, point number 4 पे जाता हूँ मैं. Point 217, passage 168. The quality of ideal karma yogi has been stated in the article as we see sthita pragya. Therefore, the work which we are doing as karma cannot be defined as a karma yoga. Kindly clarify. Unless you become actually without becoming actually sthita pragya, you cannot be a real karma yoga. Karma yogi. जी महाराज जी. You must become sthita pragya, then only you will be a real karma yogi. It's not so easy to become a karma yogi. Yes, not so easy. अच्छा, जी महाराज जी, समझ में आया. अच्छा, नंबर 5, 220, पेज 170, उसमें लिखा है अच्छा occult power के बारे में. Does the occult power come in the process of spiritual practices? Not necessary. अच्छा. It may or may not come. अच्छा, तो फिर इसके बारे में जो जिक्र किया उन्होंने, तो कैसे how the spiritual aspirant becomes should be aware of this occult powers and कैसे आता है? If he is careful, if he has read the books, जब पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा तो पता चल जाएगा कि क्या क्या होते हैं स्पिरिचुअल पावर. श्री राम कृष्ण की किताब पढ़ी तो परिचय आ जाएगा. मुझे मालूम है कि मैं जब मैंने आई वाज यंग, थोड़ा ध्यान जब करता था तो आई कुड नो कोई आदमी आया तो उसके मन में क्या विचार है वो पता चल जाता था. इस तरह का होता था तो आई इमीडिएटली स्टॉप मेडिटेटिंग so that it goes away. अच्छा, that means it comes. छोटे minor things they come. But as soon as they come, which is unusual, we used to stop it. Immediately stop the meditation. अच्छा. And let it go away. अच्छा, अभी अपने दिलीप भाई को बताया कि प्राणायाम से ही होता है. Is it that pranayam should be stopped? Whatever it is, pranayam, meditation से प्राणायाम से किसी भी हो सकता है, it is to be stopped. Don't worry about it. अरे चल दो. ठीक है महाराज जी, thank you. Question number 6, point 228.
I have asked you to just explain this. It is the nature of the undivided consciousness. This consciousness is all pervading, permeating everything through and through. The existence of all objects in the universe is due to its being, to its existence. Therein. All knowledge of the world comes from the light of the consciousness and its pure intelligence. All happiness that is in creation flows from its bliss. थोड़ा सा उसके बारे में बोलिए महाराज जी। अरे ऐसा है कि जो ब्रह्म है ना, अब वो क्या है, कॉन्शियसनेस को कैसे समझाएंगे? अभी मैंने बताया ना, वो आकाश की तुलना से बताया था। तो जिस प्रकार आकाश है वैसे प्रकार कॉन्शियसनेस है, और इस प्रकार जो आकाश जैसे प्रकाश है, अभी लाइट चल रही है, प्रकाश चल रहा है, तो सब कुछ हम देख रहे हैं। तो ये उपमा है, देयर आर दीज एग्जांपल्स आर गिवन फॉर ब्रह्मन। इट इज लाइक दिस, आइदर आकाश के रूप में ले लो या लाइट के रूप में ले लो। तो इट इज एवरीवेयर, इट इज लाइक आकाश या प्रकाश के रूप में। अच्छा, तो दैट इज ब्रह्मन। यू नो इट इज कॉन्शियसनेस जिसे कहा ना, वो इस प्रकार की है। अब कैसे समझाएंगे? देखो, टेबल में कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन हम में कॉन्शियसनेस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। अभी बताया आपने। हाँ, तो फिर तो अब नाउ व्हाट एल्स डू यू वांट टू नो, अंडरस्टैंड? महाराज जी, अगर ये कॉन्शियसनेस इज ऑल परवेडिंग एंड ऑल परमिएटिंग, दैट मींस दिस कॉन्शियसनेस इज गुड, दैट मींस इट कैन नॉट डू एनी इविल। अरे कॉन्शियसनेस तो एग्जिस्टेंस है, ये भगवान। अच्छा, एविल और वो अच्छा और बुरा का क्या होता है? जो बदमाश आदमी है उसमें भी कॉन्शियसनेस होती है, डाकू में भी कॉन्शियसनेस होती है। अरे क्या, क्यों सब कर रहे हो ये, कैसे कैसे क्वेश्चंस? जी महाराज जी, समझ में आया महाराज जी। क्या समझ में, कॉन्शियसनेस कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर वही प्रकार की बेसिक स्ट्रेटम इज कॉन्शियसनेस। लाइक आपने बताया था पर्दा का समान, जो बताया था वही वाला है। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में है पॉइंट नंबर 222, पेज 173। व्हाट इज नॉन अटैचमेंट? Is it detaching yourself and distancing yourself from the rest of the world, usually in an attempt to avoid disturbing feelings? अरे भाई, ऐसा कैसे इसको समझाएं? आसक्ति समझते हो कि नहीं समझते हो? तो डिटैच हो जाए क्या? आसक्ति समझते हो या नहीं, क्या नहीं समझते हो? अटैचमेंट यू अंडरस्टैंड और नॉट? Yes. You are attached to wife, children, things, etc., isn't it? Yes. And now that is, you have got a feeling of attachment. वो feeling नहीं होना, that's all. You are feel attached to your house. And you have to distance. किसी दिन तुमको कहा गया कि ये हाउस को छोड़ के चले जाओ, तो चले गए। उसके बाद में you are not feeling the presence even of house, you are not remembering the house. That is attachment, non-attachment. Okay. Thank you Maharaj ji. Thank you Maharaj ji. Okay Maharaj ji, thank you. What is the difference? ठीक है महाराज, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ मैं। ये बी पार्ट थोड़ा इसको स्किप कर रहा है। नॉन अटैचमेंट एंड डिस्पैशन, ये दोनों के सेम है क्या महाराज जी? नहीं, डिस्पैशन की डेफिनेशन, डिस्पैशन यानी वैराग्य। अनासक्ति और वैराग्य में अंतर है। वैराग्य की डेफिनेशन करते हैं, क्या है? जिहासा। जिहासा मीन्स द डिजायर टू गिव अप व्हाट? अनित्य भोग वस्तु, संसार के सुख दुख जो है, वो खाने पीने की इच्छा, भोग की वस्तुएं, उनको सबको त्याग करने की इच्छा, दैट राग द्वेष को त्याग करना। जो राग द्वेष मन में नहीं होता है उसको कहते हैं वैराग्य। एब्सेंस ऑफ राग द्वेष इज कॉल्ड वैराग्य। वैराग्य एंड डिस्पैशन बोथ आर सेम। Meaning of vairagya is translated as dispassion. Okay, thank you Maharaj ji. Point number 22, 174 में जाता हूँ। Do you have to practice non-attachments and dispassion if you cling to the Lord by means of all conditions? No, ये तो हो गया, आपने बता दिया अभी, इसको skip करते हैं।
पॉइंट नेक्स्ट में जाते हैं, पॉइंट नंबर 229. How the whole life becomes an act of yagga or sacrificial worship. Kindly explain. The whole life becomes, इसमें बताया पॉइंट नंबर 229 में, अच्छा this देखो, whole, हाँ, जो साधक है तो क्या करता है, होल लाइफ बिकम्स ए यज्ञ. यज्ञ में क्या करते हैं, तुम एक अग्नि जला के उसके अंदर राम कृष्णाय स्वाहा, जो हमने खाने के घी डाला वो राम कृष्ण को दिया, बिस्कुट दिया राम कृष्ण को दिया, फल दिया राम कृष्ण को दिया, जो भी कुछ चीजें हैं पंच पंच तत्व दिए वो राम कृष्ण स्वाहा, ये सब के सब करते हैं, सब देते हैं. जो साधक है वो जो कुछ करता है वो सब मन ही मन वो राम कृष्ण को, भगवान को देता है. वो अपने लिए कुछ नहीं करता. जो कुछ करता है, खाना पीना उठना बैठना, ये सब का सब राम कृष्ण यानी भगवान को देता है. उसकी सारा जीवन जो है उसने अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया है भगवान को, इसलिए सारा जीवन उसका एक यज्ञ बन जाता है. ओहो, अच्छा जी महाराज जी, अच्छा, हाँ समझ में आया महाराज जी, हाँ समझ. नेक्स्ट पॉइंट पे जाओ. थैंक यू महाराज जी. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 लास्ट है ये, 242 पेज 189. द परस्यूट ऑफ नॉलेज, एनालिसिस, रीजनिंग, research and the study of other sciences refine the intellect, bring the light many subtle principles and lead to the discovery of many new truths which do a lot of good to the world. So my question is, can this pursuit of knowledge, analysis, reasoning and research be termed as equal to upasana? No, it has nothing to do with. उपासना जो भगवान के लिए किया जाता है वो उपासना होता है, अदरवाइज नथिंग. दीज आर यूजलेस. अच्छा, दे आर एब्सोल्युटली यूजलेस so far as God is concerned. Bondages. अच्छा, ओके, थैंक यू महाराज जी, प्रणाम महाराज जी, थैंक यू महाराज जी. चलो अब कौन हो गया, निवेदिता हो, घोष, ईतू हो गया, सुभाष हो गया, सुबीर मजुमदार. हाँ प्रणाम महाराज जी. हाँ महाराज जी, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअली फ्रॉम सेइंग नंबर 235, जो सेकंड पैराबल उसमें श्री राम कृष्ण का दिया गया है, तो उसमें दो पैराबल है, दूसरा वाला है इट्स अबाउट द हैग ब्रेसलेट. तो मैं ये जानना चाह रहा था, प्लीज एक्सप्लेन द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ दिस पैराबल. व्हाट इज द पैराबल, कौन सी पैराबल है? वो there was a hag and a golden bracelet, वो बार बार उसको शो ऑफ करने की कोशिश कर रही थी, लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, फिर उसने कुछ आग वाग लगा दिया अपने घर में, एंड उसके बाद she was still trying to point to her golden bracelet to attract attention. तो ऐसा था. मेरे पास अभी किताब नहीं है, I can't from the book. नहीं, वो कहानी तो यही बताने के लिए है कि लोग जो हैं वो धर्म को नाम के लिए करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं. They only want to show off. They are not sincere about spiritual life. That is the point. So it is a showing off your spiritual and हाँ. show off कर रहे हैं. That's what it is all about. ठीक है. ओके, मतलब आप कर कुछ नहीं रहे, बेसिकली आप दिखा रहे हो कि मैं ग्रेट डिवोटी और समथिंग. सेकंड क्वेश्चन महाराज जी, नंबर 236 से है. कहते हैं गॉड गिव्स इंस्पिरेशन and makes the path of the aspirant smooth as he continues to strive in the spiritual path. But to me it appears that it becomes more and more difficult as we strive and progress. अगर हम थोड़ा सा भी spiritual path में आगे बढ़ते भी हैं, जैसे कि this path is very very, ऐसा क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि as you continue to strive, path becomes smooth, जबकि हमें बहुत ही और ज्यादा मुश्किल लगने लगता है. ऐसा कहा है कि स्मूथ हो जाता है पाथ? मतलब महाराज यही तो हिमालय माउंट एवरेस्ट पे चढ़ोगे तो जितना चढ़ोगे तो कठिन होता ही जाएगा. नीचे तो थोड़ा स्मूथ होता है, ऊपर जो है वो और
बड़ा हाई डिफिकल्ट होने लग जाता है। तो there is no shortcut or no easy path to spiritual life. Don't expect that. We are शूरस्य trying धारा to go to the highest step. Hence definitely appear difficult. Appear क्या difficult? It is difficult. Why only say महाराज appear difficult? हाँ, कठोपनिषद में बोला ना शूरस्य धारा निश्चित क्षुरस्य धारा, the difficulty है, always difficult. तो यहाँ Why do you think that it will become easy? Who told you that it will become easy? इस पैराबल में कहते हैं God gives us strength and inspiration. Aspirant smooth continues to strive in the spiritual path. तो यही मुझे लगा कि स्मूथ तो है। नहीं, वो ऐसा है कि the aspirant does not lose courage. वो बल्कि जितना डिफिकल्ट होगा उतना इजी स्ट्रांगली करने लगेगा। तो स्ट्रेंथ और इंस्पिरेशन, स्ट्रेंथ स्पिरिचुअल आएगी। He will also have the determination to do it. Got it, Maharaj. And the last question, Maharaj, in saying number 240, it says, whatever place or situation mother puts us in, we must realize that it is good, whether we understand it or not. So, this is like the example of Sharanagati of the kitten in Kathamrita. Like, but it's a matter of acceptance. But how do we get established in this belief and acceptance? No, you have to take it for granted that whatever situation they have been put, mother has put, it is for my good. Just as a kitten has been put, so kitten says that wherever mother has put, that is for me. That's all. He never bothers about it. So wherever you are going, go on doing your spiritual practices under all situations. Okay. And the mother will decide what situation, more better situation to be given to you or not. And होता क्या है कि अगर आप वर्ड सिचुएशन में भी लगे रहो तो सिचुएशन इंप्रूव हो जाता है। और चांस यू फाइंड, अरे हम डिफिकल्टी में भी किया, मदर हैज ब्लेस्ड मी विद ए मोर बेटर सिचुएशन फॉर मेडिटेशन। जी महाराज ये भी तो कहा गया है ना, हम आप 2 कदम आगे जाएंगे तो भगवान और 4 कदम हमको और आगे बढ़ाएंगे। नहीं, 1 कदम जाओगे तो 10 कदम हमारे पास आएंगे। 2 और 4 कदम की बात करते हो तब तो 10 कदम की बात है। तो वो भी तो हमारे पास ग्रेस ही है ना। हाँ, तो वो 1 कदम जाओगे तो भगवान 10 कदम आगे आएंगे। 2 और 4 की बात नहीं करते, 10 कदम की बात। चलो, हो गया जी। शिवानी, बहुत अच्छा। प्रणाम महाराज। महाराज मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ 216, लास्ट लाइन्स है, इंस्पायर्ड बाय देयर precepts and ideals, millions of persons have scorned life and gave it up for others without quelling, and in return have earned deathless life. So my question is, what is the meaning of deathless life here? अरे आत्मा कभी मरती है क्या? नहीं। तो बॉडी मरती है जी। तो आत्मा को तो डेथलेस हो गई। अच्छा, कि मतलब वो लोग अमर, आत्मन, हाँ, वो लोग अमर हो जाते हैं कहने का मतलब। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टेलिंग, अमर हो जाते। ठीक है महाराज। महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ 222 in last line, pray to God or practice pranayama. So my question is, what kind of pranayama can be practiced? It has not been discussed here. जी। उसमें जो है वो एक 142 का है, प्रारंभ में चित्त शुद्ध नाड़ी शुद्धि वगैरह करते हैं, और या फिर प्राण को अंदर लो और निकालो, 12 मात्रा में लो 12 मात्रा में निकालो, उसे ही करता रहो बस। इतना ही अगर 6 महीने करोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट डिटेल्स ऑफ प्राणायाम। हाँ, और महाराज कितनी देर तक कर सकते हैं? तुम 8 से शुरू करो, यानी 12 मात्रा में अंदर लो 12 मात्रा में बाहर निकालो,
आठ आठ बार करो और 6 महीने तक करो, ठीक है। और उसके बाद में फिर 4 मात्रा या 8 मात्रा रोकना शुरू करो। ठीक है। इस तरह का कर सकते हो। ठीक है महाराज। हम्म। महाराज लास्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ 234 लास्ट लाइंस में है, बट दे पर्पसली कम डाउन फ्रॉम द गोल एंड प्ले अगेन, दे नो दैट विद देयर मास्टर स्ट्रोक्स। सो प्लीज एक्सप्लेन दिस लाइन, दैट दे कम डाउन फ्रॉम द गोल एंड प्ले अगेन। ये जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, हाँ जी। ये कहानी है ना, वो कहानी है कि वो गोटी में खेलते हैं, खेलते खेलते लूडो खेलते हुए लास्ट में पहुंच गए, सिद्ध हो गए। उसके बाद नीचे दूसरे की किसी गोटी मारना है तो फिर नीचे एक बार मारते हैं, मार के और फिर चले जाते हैं। तो जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, सिद्ध गुरु होते हैं, वो अपने में पूरी एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं, और उसके बाद में वे लोग फिर भी एस्टेब्लिश होने के बाद में भी लोगों के कल्याण के लिए वो संसार में। तो महाराज जहाँ पर ये कहा गया है कि जो रियलाइज हो जाते हैं वो फिर ज्यादा देर तक या समाधि हो जाती है, जिंदा नहीं रहते हैं, 21 दिन के बाद शरीर छोड़ देते हैं, तो ये उससे पहले वाला लेवल है? नहीं नहीं, ये वो वही वाला लेवल है। ऐसे 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग अच्छा। होते हैं सिद्ध होने के बाद में वो नीचे भी आ सकते हैं, they अच्छा। can also come। श्री रामकृष्ण के डायरेक्ट डिसाइपल्स थे तो सब लोग समाधि हुआ करती थी, वो लोग उच्च कोटि के थे, लेकिन कितना काम किया उन लोगों ने। जी। और जब भी इच्छा होती थी सब छोड़ छाड़ के जा भी सकते थे, कभी भी निकल। ठीक है महाराज, हाँ, दैट्स ऑल। प्रणाम महाराज। हाँ। अच्छा, अब हुआ सतीश वेग। सतीश वेग अभी तो थे। प्रणाम महाराज। प्रणाम हाँ महाराज। भाई, प्रणाम आ जाओ। हाँ। महाराज। फर्स्ट क्वेश्चन, when we realize separate from body we do not feel its pain and misery। जब हम बॉडी से सेपरेट हो गए, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया महाराज, जैसे नारियल का होता है, फल होता है तो उसमें से नारियल पक जाता है तो अलग हो जाता है। तो जब हम जब वर्ल्ड से सेपरेट होते हैं, माया से सेपरेट होते हैं, तब क्या होता है हमारा? वही होता है और क्या होता है? क्या मतलब? जब होगा तब होगा, तुमको पता चल जाएगा। इसमें क्यों जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? जब आपको ये लगेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर मन से पृथक हूं, तब हाँ जी। आनंद में रहोगे, और क्या होगा? अभी तो प्रथम तो कर रहे हैं ना, माया से थोड़ा अलग रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो करते रहो, उसके बाद क्या होगा, जब होगा तो पता होगा। बिल्कुल ठीक लगेगा। संसार में कुछ भी हो रहा है, शरीर हाँ। में कष्ट भी हो रहा है, कष्ट भी हो रहा है, तब तुमको लग रहा है कि अरे हो रहा है, हो रहा है, मैं तो इसमें। घर में संसार कुछ में कुछ प्रॉब्लम, घर में मकान में प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, आपके ऑफिस में प्रॉब्लम है, लेकिन मन शांत है, मन लग रहा है कि मैं सबसे। दैट इज व्हाट इट इज। जी महाराज जी। ठीक ठीक महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, पैरा 217 जो है, it has therein it has been described the signs of चित्त प्रज्ञा। कर्म योगी की और सत प्रज्ञा के लक्षण बताए हैं महाराज। हम अपने वर्ल्डली लाइफ में उस कैरेक्टरिस्टिक को कैसे लाएं हमारी डे टू डे लाइफ? ऐसा है कि एक शास्त्र में एक बहुत इम्पोर्टेंट टीचिंग है, एक इम्पोर्टेंट प्रिसेप्ट दिया गया है, निर्देश दिया गया है। जो साधक सिद्ध के लक्षण है, वे साधक के साधन है। ये यहाँ गीता में भी भगवान शंकराचार्य ने भी कहा है, यह सब इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो स्थित प्रज्ञ का दर्शन बनाया है, गीता में बताया है ना। द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ से का भाषा, ये बताया गया है। उसके बाद श्रेष्ठ भक्त के लिए बताया है, त्रिगुणातीत भक्त के वर्णन किया है। जो नरिष्यति, जो सुखी नहीं होता, दुखी नहीं होता, लाभ अलाभ में सब शांत बना रहता है, ये सब सारे जो बनाए वर्णन बनाए हैं।
ये जो है ये हमारे में नहीं है, ये हमारी साधनाएं हैं। जी जी जी। अब पूरा बताया क्या साधना करना है, जो चित्त प्रज्ञ में हो गया है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना। ए वेरी दुख इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चरल स्टेटमेंट है। जो चित्त जी प्रज्ञ जी के महाराज, साथ सिद्ध है वो साधक के साथ। महाराज दुख हो सुख हो तो हमें उस सुखे समझना है दुखे कि समय लाभा लाभो जया जयो, बस उसको आप तुम्हारे जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। जी महाराज जी। लास्ट क्वेश्चन महाराज, if the concentrated power is directed by paras 218, उसमें है if the concentrated power is directed by means of meditation to the true nature of the supreme self, one is merged into Brahman in the Nirvikalpa Samadhi. Maharaj, is this jnana meditation, Gyan meditation? Then how is it different from Raj Yoga meditation? देखो अच्छा, there is a good question. देखो मेडिटेशन दो प्रकार का। राजयोग में मेडिटेशन क्या है? कंसंट्रेशन किसी भी एक वस्तु पर, एक मूर्ति पर ध्यान हो सकता है, एक कपड़े पर ध्यान हो सकता है, या फिर एक विचार पर भी ध्यान हो सकता है। तो ये कंसंट्रेशन वो है श्रवण, वो है धारणा ध्यान समाधि। तो धारणा में कहते हैं मन को हटाओ, सबसे एक स्थान पे लगाओ। उसके बाद में ध्यान आता है कि उसमें बस एक ही चिंतन करो, तत्व प्रत्यय एक ही तान बनी रहे मन। तो ये हुआ ध्यान, ये हुआ राजयोग का ध्यान। जी। अच्छा, ज्ञान योग में क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन, उसको निधिध्यासन कहते हैं। यानी क्या है कि विचार सुनो, किसी बात को सुनी आपने कि ये ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो जगत मिथ्या क्यों है, और जो जीव है वो आत्मा है। विचार किया, विचार कर करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे तुम कि जो ब्रह्म है वही आत्मा है। ये जो निष्कर्ष पर पहुंचना है इसको मनन करते हैं, और इसमें जो निधिध्यासन का करते हैं उसी पर मन लगाए रखना होता है, उसको निधिध्यासन कहते हैं। तो ये निधिध्यासन जब करते हैं तो मन बार बार जाता है कि नहीं जगत सत्य है, बार बार मन को लाके लगाना पड़ता है कि नहीं जगत मिथ्या है, ये ब्रह्म ही सत्य है, जीव और ब्रह्म एक हैं, ये बार बार लगाना पड़ता है। ये हुआ ज्ञान योग का ध्यान। और भक्ति योग का मैंने वो राजयोग का मैंने बता दिया, एक ही मन को उसमें लगाए रखना पड़ता है। अब राजयोग का ध्यान करने पर जब मन की आपने एकाग्रता सीख ली, कंसंट्रेशन सीख लिया, उसको आप जो ज्ञान योग से निर्णय लिया है आपने, अल्टीमेटली मैं ब्रह्म हूँ, अल्टीमेटली ये जो हुआ उसमें कंक्लूजन जो आ गया है, उस पर वही राजयोग का ध्यान भी किया जा सकता है, उसमें राजयोग का भी ध्यान किया जा सकता है। तो इस प्रकार से दोनों ध्यानों का हम यानी समन्वय कर सकते हैं, उसमें एक दूसरे से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जी अल्टीमेट तो सुप्रीम ही है, सुप्रीम सेल्फ को जानना ही है ना महाराज। हाँ, अगर तो पहले अपना कॉन्सेंट्रेटेड हो गया तो उसको तो लगाएंगे तो सुप्रीम सेल्फ पे ही लगाएंगे ना, लेकिन याद रखो कि ये सुप्रीम स्पिरिट को जानने की जो प्रार्थना है, ज्ञान राजयोग में जो प्रोसेस है उसमें क्या कहते हैं, पहले से ही शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। जी। हाँ, उसके बाद में और भी क्या है, सब क्या है, उसके बाद में स्वाध्याय, ये सब कर करके शुरू में काफी प्रोसेस है। जी वो शम दम उपरति तितिक्षा, इसको आपने साधना नहीं और फिर हम सब केवल हम ब्रह्मास्मि ध्यान करेंगे ऐसा नहीं किया है। अपने मन को एकाग्र करने की प्रोसेस साधना में और योग सूत्र में, ये ज्ञान योग में भी है। जी महाराज बहुत इम्पोर्टेंट है। विवेक चूड़ामणि में पढ़ो तो उसमें शुरू में बहुत सारा दिया गया है। That is similar to ask a question here. उसका उद्देश्य यह है कि ये ध्यान जो है, ये सब ध्यान ये जो है मन को तैयार करने के लिए, निधिध्यासन के लिए तैयार करने के लिए है। केवल बोलने से तैयार निधिध्यासन नहीं होगा।
जी जी महाराज। जैसे राज योग में जम और नीम है, वैसे उसमें षट संपत्ति है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है महाराज। हाँ? जैसे राजयोग में जम और नीम है, जम नियम हाँ हाँ धारणा उसी है, तो तरह वहां पर है सत ज्ञान संपत्ति योग है, में भी है। तो दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, दे आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर, ऑलमोस्ट जी सिमिलर, इसलिए कहते जी हैं निधिध्यासन और ध्यान एक होते हुए भी बड़े कठिन है। जी। Swamiji, can I ask a question here? I have Yes, Shivani, now it is your Malini, now it is your turn in a minute. In a minute, please wait. Let okay. Satish Okay. complete. No, this is related to this. I wanted to ask a question. Okay, just a minute. Okay. Swamiji, I should ask later or now? Hey, just a minute. Okay. Satish, I am talking to You can Satish. start. Sorry. Satish, बोलो हो गया तो? जी जी हो गया महाराज, प्रणाम महाराज। अच्छा ठीक है। अच्छा जी महाराज। Now Malini Gupta. Now what you wanted to tell just now, you tell. Yes, Pranam Swamiji. Swamiji, see, you mentioned, like you explained the difference between Gyan, meditation, and Raja Yoga meditation. Now, my question here is, suppose you have arrived at a nischay on an issue. You are studying, you are meditating on something, but now there is no doubt in your mind about it. It's like pakka. Is that a siddhi? Is it like, for example, you never change your mind on anything. Like once you come to a nischay, that's it. Okay, I've not seen you revert or change your decision. So that means in jnana, siddhi is nishchayatmika buddhi, right? It's not meditate. Then you don't have to meditate, is my question. Nishchayatmaka buddhi will come by nididhyasana. That's a fruit. No, nididhyasan, by nishidhyasan you get ultimately nishchayatmika buddhi. Okay, got it. Swamiji, there is this question. Of course, you've answered it. I'll read out the two answers you've given also. And my question is, Karma Yoga is very, very difficult. People know your triggers and provoke you in every way. How does one not get provoked? I find myself unconsciously reacting and answering back. And then I feel guilty and small and remain sapped of energy the whole day. But the provocations are huge. And now I'll give you one, I'll mention two answers you've given. Already one in the talk, that unless you're a Sthita Prajna, you cannot do Karma Yoga. And it's a very difficult path. You've already mentioned this. The second answer you've sent is this beautiful saying of Saint Francis, that when you find Karma Yoga difficult, this is the saying: O Lord, grant that I may not so much seek to be understood as to understand, to be loved as to love, to be pardoned as to pardon. For it is giving that we are giving, in pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to eternal life. And frankly, this one thing which you sent me gave me life. It answered everything. Yes. Okay. Yes. Acha, Kundu, your questions. महाराज, कुंडू जी ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें सिग्नल की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने लिखा है कि वो आज ज्वाइन करना मुश्किल होगा। अच्छा, रीता विश्वास, एक क्वेश्चन में, हम लोग के जो रूटीन ध्यान करते हैं हम लोग, निवेदिता, हाँ निवेदिता, तुम बड़ा एक वेट करो। ओके, ये स्वामी जी बीच में गड़बड़ करती हो, क्वेश्चन भेजती नहीं हो, तुम्हारा कांच पर कान पकड़ना पड़ेगा।
Rita. Yes, Swamiji. हाँ. My first question to number 215, page 165. Here Swamiji says, work, whatever you do it selflessly without attachment. Do it for its own sake without expectation for you. This is what I have been trying to practice for several years. What to do when you work, you get criticism and you also get praise, and how to handle that. You have already answered this question, Swamiji, but I just wanted to clarify that more. अच्छा ये बताओ, Yes, Swamiji. दुनिया में इतने बहुत सारे निष्काम कर्मी बड़े बड़े हो गए हैं, महात्मा गांधी हो गए हैं या क्या क्या सब हो गए हैं. Yes. Tell me one person who has never got criticism. No, everybody has got criticism. So you are blessed that you are getting criticism. You are great. Thank you. My second question is number 217, page 167, 168. So, kindly explain the characteristics of an ideal karma yogi, especially the sentence, even working he does not work, and even without working he works. How is this practiced? You have already answered this question partially. Yes, ऐसा है कि देखो, mentally he is absolutely at peace. And so whatever he works, he thinks that I am not the doer, God is the doer. So he is not doing. And अकर्म यानी कर्म में मैं करता नहीं. और उसके बाद में है कि जब when he is sitting quietly, he is constantly thinking of God. इसलिए वो कर्म मन में निरंतर कर्म करता रहता है. अकर्मणि कर्मयः, यानी मैं करता नहीं ये भाव. और जब वो भगवान का कंटिन्यूस चिंतन करता रहता है, यानी वो कंटिन्यूसली कर्म करता है, विदाउट बाहर कुछ कर्म करता दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर कर्म करता है. Yes. ओके. Yes, Swamiji. Thank you, Swamiji. भुवन. हाँ जी महाराज, कैन यू हियर मी? यस. हाँ जी महाराज, मेरा पहला क्वेश्चन है वर्स 208 में से. तो इसमें स्वामी विजयानंद जी ने कहा है कि डू नॉट लव एनीवन फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट गॉड. सो माय क्वेश्चन इज, if we do this, will it not make us unfeeling like a wall? Oh, it's just the opposite. If you really love God, ultimately you will all love everyone equally. You will see God in everyone. Intensely love God. Don't worry about others. People will feel that you are loving them. You are doing your routine duties, isn't it? You will take care of your daughter, you will take care of your parents, etc. Whatever you are there, you are doing the routine, and you will find that they will feel that she is loving us so much. Automatically, you will start feeling and seeing God in others. So it is not loving them, but loving God in them. That is the one. That is the whole thing. You will see God, automatically you will see God everywhere and love them. हाँ जी. Maharaj, my next question is on 218. And is Ujjayi breathing helpful to control pran? What you said? Is Ujjayi breathing, होता है ना प्राणायाम में Ujjayi breath? उदान वगैरह देखो, ऐसा है कि प्राणायाम किसी गुरु के बिना नहीं करना चाहिए. हाँ जी. और जो है 14A2 का इंस्ट्रक्शंस देते हैं. तो my only suggestion is कि प्राणायाम करना हो तो अभी जो मैंने बताया ना, उसको शिवानी को बताया. शिवानी को, हाँ जी. हाँ, कि 12 से एक नाक से 12 से लो और दूसरे नाक से 12 से निकालो.
फिर 12 से लो, 12 से निकालो, रोको मत, ऐसा करो 6 महीने तक। उसके बाद में फिर बीच में भी 8 या 12 को थोड़ा रोकना, कुंभक भी शुरू करो। इस तरह का सिंपल प्राणायाम करने से कोई हानि नहीं। अच्छा और जी, उसका लाभ हाँ जी, लाभ उतना ही होगा जितना डिफिकल्ट प्राणायाम से। अच्छा जी, हाँ जी। हम्म। तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन इज कि ये है वर्स 227 में से। सो दो एटीट्यूड्स है ना, भक्त का एटीट्यूड आई एम हिज और ज्ञानी का एटीट्यूड आई एम ही। तो मेरे लिए कौन सा एटीट्यूड ज्यादा अच्छा है? तुम देखो, तुम भक्तों के ज्ञानी हो, भक्त का एटीट्यूड रखो ना। हाँ जी, ठीक है, ठीक चलो। है, हाँ जी। महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्चुअली बच्चों को ना प्रॉब्लम काफी है आजकल कि वो वीडियोस, बहुत एडिक्शन है टेलीफोन पे वीडियोस देखने का लेट नाइट में। तो आप उसका मतलब सोल्यूशन जो मैं सोच रही थी वो ये था कि उसको होली बुक्स की रीडिंग कर दें, और वो अपोज नहीं करती है लकीली इस बात को। तो तो ऑटोमेटिकली उसकी ये हैबिट छूट जाएगी, और वो झूठ बोलती है हमेशा कि हम नहीं देख रहे वीडियो, जबकि वो देख रहे होते हैं। अब भाई, अब मैं क्या बताऊं, मेरे तो कोई बच्चे है नहीं, और मेरे को बच्चे कभी बड़े किए नहीं है, मैंने कुछ मैं नहीं जानता है सब। You have to ask the child specialist. ऐसा है कि कहानी, उनको वीडियो में भगवान की कहानियों की वीडियो बता दो, क्योंकि वीडियो तो अच्छा जी, छोड़ने वाली है नहीं बच्चे। तो रामायण वीडियो है, महाभारत की वीडियो है, कृष्ण की वीडियो, कृष्ण के तो बहुत सारे सीरियल्स हैं। if they if they at all they see, they will see that this can be done. या अच्छा फिर जी, कहानियां बैठ के कहानी सुनाओगे, लेकिन मन तो उन लोगों का वहां चला जाता है ना। आज के जमाने का ये वीडियो जनरेशन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। हाँ जी, हाँ, हाँ महाराज जी, वो तो मैं समझ गई। उसको इन अ इन अ वे उसको स्टॉप करना है, क्योंकि उससे माइंड बहुत स्कैटर हो जाता है एंड टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा घंटे वेस्ट हो जाते हैं, 2-3 घंटे yes, वेस्ट हो yes, जाते हैं। that is true. हाँ जी। हाँ, सो फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग द इनर वॉइस। मतलब जैसे कि इनर वॉइस हमें जैसे गाइड करती है कि साधना करो, लाइक टाइम फॉर एक्सपीरियंस वैसे भी। तो आप उस कई बार इनर वॉइस बड़ी वीक हो जाती है, तो can you advise whether we listening to the inner voice always will make it stronger? It might be just, I don't know if it is just my conscience guiding me or it is the inner Guruji guiding me, but देखो भाई, frankly speaking, I in my life, whole life, I never bothered and never knew what is inner life is. I never knew what is inner life. हम तो अपना रूटीन बना लेते थे और एक्सरसाइज करते थे, ध्यान जब बैठ के दिन भर का एक रूटीन बिल्कुल फिक्स बना के आई यूज्ड टू डू, रेगुलर प्रैक्टिस करते थे। बना लिया कि भाई मैं 5,000 जप करूंगा तो 5,000 जप करता था, 10,000 करूंगा तो 10,000 करता था। सुबह शाम उठना कितने बजे, आधा घंटा बैठना, 1 घंटा बैठना, ये सब मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली रूटीन बना के करता था। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इनर वॉइस, द क्वेश्चन ऑफ बॉदरिंग अबाउट इनर वॉइस डज नॉट अंडरस्टैंड, आई डोंट नो। So I'm sorry to answer हाँ your जी, question, but this is what I use. ठीक, हाँ जी, Is that okay? हाँ जी महाराज जी। कोई बचा तो नहीं? पीयूष जी, पीयूष कुंज जी नहीं आए, बात नहीं किया? हाँ? नहीं नहीं महाराज, हूँ मैं हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ओके। सुनता हूँ पूरा पूरा आपका महाराज। अच्छा अच्छा, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। महाराज बस अभी इस चीज में थोड़े से नालायक हूँ। हाँ, कई आजकल कई लोग बहुत क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं, तो मैंने कहा नहीं क्या करूं। महाराज, पूरा अच्छा पूरा जो फिर होता है ना पूरा सुनता हूँ। अच्छा, समरी के लिए भी मैं कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने बहुत दिनों से समरी नहीं की है वो भी वॉलेंटियर करिएगा, ठीक है? Anyway, we had a good session today, isn't it? Yes. Yes. यस हाँ? महाराज।
You had a good session today. Yes. अच्छा भाई, Yes, Maharaj. ठीक है। Thank you, तो Maharaj ji. ये मधुबाला तो नाइदर तमरी भी नहीं करती है और क्वेश्चन भी नहीं पूछती है। Maharaj. प्रणाम Maharaj महाराज कर जी, देंगे। प्रणाम हाँ। महाराज जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम नमस्ते महाराज। नमस्ते सबको, प्रणाम नमस्ते महाराज। प्रणाम नमस्ते महाराज। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराज शांति मंत्र, अच्छा, शांति मंत्र हो जाए। ओम सहनावतु शांति। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शामहि। ओम शांति शांति। शांति। हरि ओम। हाँ, जी नमस्ते।